બીમારીઓનું મૂળ કારણ ન્યુટ્રિશન્સ અને માઇક્રોન્યુટ્રિશન્સની કમી. વિટામિન ડી, B12, કેલ્શિયમ, આયરન, ઓમેગા, વિટામિન સી, ઝીંક અને સ્કિન માટે ડી સાથે કોલેજનની કમી. આ બધી જ બાબતોમાં આજ બતાવીશ. શરૂઆત આજે હેલ્ધી ડાયટથી કરીએ છીએ. હેલ્ધી ડાયટમાં આ એક તો ખાવામાં પીવામાં બધી જાતની સલાદ અને બધી જાતના અનાજથી બનાવેલી મલ્ટીગ્રેનથી બનાવેલી આ રોટી, મિક્સ રોટી, મિક્સ સબ્જી, મિક્સ દાલ, મિક્સ ડ્રાય ફ્રૂટ્સ અને અંકુરિત આ બધું અને આ સલાદ, આ તો રામબાણ છે. અને એની સાથે સાથે આ મિક્સ જ્યુસ, આ બહુ જ જબરદસ્ત છે. આ મિક્સ જ્યુસ એ તો આમાં બધા ફ્રૂટ્સ એનો જ્यूस આ પી લે માણસ એકદમ એને તંદુરસ્તી આવી જાય. हाँ ये बहुत दुबला पतला इधर है, एकदम फोटो खिंचवाए तो एक्स्ट्रा आ जाए, तो पी ले इसको. हाँ तो ये આ તો થયું એક હેલ્ધી રહેવા માટે ન્યુટ્રિશન, માઇક્રોન્યુટ્રિશન. બીજું જો આ બધા જાતના ફ્રૂટ્સ, ડ્રાય ફ્રૂટ્સ છે અહીંયા, અને આ બધાના તલ ને સિંગદાણા ને બાદામ, અખરોટ, કાજુ, દ્રાક્ષ, આ બધું, હા ચિરોંજી, આ બધું મિક્સ કરીને એનો પેસ્ટ કરીને આમ નાખી દઈએ આપણે. એને અમે પેસ્ટ પણ નાખી શકીએ અને એ સાબુત પણ નાખી શકાય. એનાથી તમે જે નાખવાનું હોય એ નાખીને પછી એને શેકીને અને જેને એકદમ પેસ્ટ જેવું કરીને ખાવું હોય અને ઘણા બધાને આમ ક્રન્ચી કરીને ખાવું હોય, જેને જેવું ગમતું હોય એ લઈ લેજો. એનાથી તમારા શરીરમાં સંપૂર્ણ પૌષ્ટિકતા મળે. એટલે મલ્ટીગ્રેન આ આટા, નવરત્ન આટા, અમે અહીંયા આવા જ આટા મૂક્યા છે. મલ્ટીગ્રેન આટા, બધી જાતના તેલ, ઘી, સોયા, આ બધું ખાવાનું. પછી ઘી, દૂધ, દહીં, મલાઈ, મક્ખન અને આ બટર, અને અમે ચોકલેટ પણ હેલ્ધી ચોકલેટ બનાવી છે આ બધું. અને આ તો ડિવાઇન ચોકલેટ તૈયાર કરી દીધી છે. આવી રીતે જે પૌષ્ટિક આહાર લેશે, દરરોજ યોગાભ્યાસ કરશે અને અડધું કલાક તો ઓછામાં ઓછો સૂર્યની તાપમાં બેસશે, એને કોઈ જાતની ડેફિશિયન્સી નહીં થાય. बीमारियों का मुख्य कारण अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसी है. विटामिन डी, B12, बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक, ए, के, ई और कोलेजन की कमी, इससे बहुत प्रकार की बीमारियां होती हैं. और उन बीमारियों को दूर करने के लिए आज हमने एक तो शक्कर से चाशनी बनाई, इसमें ऊपर से शिलाजीत डाल दी, शक्कर की चाशनी बनाई और उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट करके मिला दिया अथवा साबुत डाल दिया. जैसे जो ठीक लगता हो, जिसको खाने में पेस्ट करके बनाएंगे तो ऐसी बनेगी. थोड़ा ऊपर से लगाना पड़ा इसमें. हाँ? और बिना पेस्ट किए बनाएंगे तो ऐसे इसमें पेस्ट और मैंने साबुत दोनों डाल रखा है. तो ये तो सबसे हेल्दी, जिसको कहते हैं ना संपूर्ण पौष्टिक आहार बन गया है. ये तो इसका 50 ग्राम खा लो तो दिन भर खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं, इतना ज़बरदस्त है. लो जी आचार्य सुमित जी आपको खिलाते हैं. ये बहुत दंड बैठक लगाते हैं. हाँ? ये इतनी ज़बरदस्त तैयार हो जाती है. ये हेल्दी थाली है जिसमें अलग अलग प्रकार के अन्न है. मल्टीग्रेन आटा है, मल्टीपल ड्राई फ्रूट्स हैं, मिक्स दाल है, मिक्स सब्जी है, सलाद है और ये सब अंकुरित आदि है. ये इतना जो खा लेगा उसको ये कोई प्रकार की डेफिशिएंसी होगी नहीं. इसके रेडीमेड विकल्प भी हैं, तो होम रेमेडी बताई अभी हमने. और इसमें जो है इनको भूनने के लिए, ड्राई फ्रूट्स को, पेस्ट को भूनने के लिए 2 चम्मच घी डाल देते हैं. उससे एकदम पूरा मज़ेदार, घी से तो स्वाद, हमारे गांव की भाषा में बोला जाता है उपड़े में भी घी डाल दो तो स्वादिष्ट लगने लगता है. घी टेस्ट को इन्हेंस कर देता है और आयुवर्धक होता है. खैर, तो आ तो थયું એક ઉપાય. અને આ બધું કરીને અને યોગાભ્યાસમાં કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ અને મંડૂક આસનથી માંડીને સર્વાંગ આસન સુધી આસનો કરવાના છે. અને આ બધા ભાઈઓ બહેનો અહીંયા બેસ્યા છે. तुमको किस चीज़ की कमी है? हाँ गुजराती आवड़े છે તમને?
મને વિટામિન B12 અને વિટામિન ડીની ડેફિશિયન્સી હતી, એટલે ખાસા ટાઈમથી પહેલાં મેં ઇન્જેક્શન પણ લીધા હતા વિટામિન ડીના, પણ તો બી પછી કંઈ થયું નહીં. પછી હવે કપાલભાતિ અને અલોમ વિલોમ કરું છું તો મને કાફી આરામ છે, એટલે હવે મને વધારે નથી. બટ હવે ફરીથી હું એકવાર ટેસ્ટ કરીશ તો મને ખબર પડશે. પહેલાં તો મને ઇન્જેક્શન પણ લીધા હતા, ફરી તો બી ઇન્જેક્શન પછી બી થઈ ગઈ હતી મને ડેફિશિયન્સી. ઘણા બધાને ઇન્જેક્શન લઈ લે, ટેબ્લેટ ખાઈ લે, આ એ તો સિન્થેટિક આપણે જે વિટામિન ડી, B12, કેલ્શિયમ, આયરન જે પણ લેતા હોઈએ ને આપણે, એ સિન્થેટિક તો બ્લડમાં તો દેખાય પણ શરીરમાં નહીં લાગે. આ ખાસ વાત એ છે જે નેચરલ તમને બતાવીશ બધું, એનાથી તમારા શરીરમાં બધું ડાયજેસ્ટ થશે, એ મોટી વાત છે. તો રોજ અડધો કલાક ધૂપમાં બેસ્યો છે ને? હા, સરસ. અડધો કલાક ધૂપમાં બેસવાનું અને સાંભળો, કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ 2 આસનો, 2 પ્રાણાયામો ઓછામાં ઓછા, અને પછી મંડૂકાસનથી માંડીને સર્વાંગાસન, હલાસન, શીર્ષાસન સુધી 10 થી 15 આસન બતાવીશ. એ બધા કરી લેજો. વિટામિન ડી માટે ધૂપ, વિટામિન B12 માટે મકઈ, બી કોમ્પ્લેક્સ માટે મોરિંગા, સરગવા, કેલ્શિયમ માટે આમ દૂધ, દહીં, છાશ અને સિંગોડાનો આટો, સરગવાનો લોટ અને એની રોટી બનાવીને ખાવી લે. અને આયરન માટે તો અનાર, ગાજર, ચુકંદર, બધા લીલી શાકભાજી, આ બધું છે જ. કપાલભાતિ તો બધાને કરવું પડે. મંડૂકાસન કરો, ચલો સભી. મંડૂકાસન ઓર પવન મુક્તાસન, આ 2 જ આસન અને 2 પ્રાણાયામ, કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ, આટલું જ કરી લે, એનાથી જ વાત બની જાય. પછી જેને ઓમેગાની કમી છે એને ફ્લેક્સીડ, જેને એની કમી છે એને ગાજર, ઈની કમી છે એને સોયાબીન, વિટામિન કેની કમી છે તો બધી શાકભાજીઓથી મળી જશે તમને, અને એલોવેરાથી મળી જશે. અને જેને કોલેજનની કમી છે અને તલ અને ગાજર, અને પ્રોટીનની કમી છે તો દાળ, દૂધ, સોયાબીન, આ બધું એને પ્રોટીન મળી જાય. અને તમને શું કમી હતી? कपालभाति करो. आपको क्या कमी था? कपालभाति के साथ मंडूकासन करो. मैं वेद प्रकाश, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन. मेरा विटामिन B12 141 आ गया था, जिसके कारण मैं इस अवस्था में बैठ नहीं पाता था, ना मैं पद्मासन ले पाता था. मैं एक्सरसाइज एकदम से मेरी छूट गई थी. मल्टीपल जॉइंट पेन्स आ गए थे मेरे, लेकिन मैंने फिर स्वामी जी को फॉलो किया. जैसा जैसा इन्होंने बोला, डंठल की सब्जी खाना शुरू किया, उसके पत्तों के रस का सेवन करना शुरू किया, और उसके बाद मुझ में आराम आना शुरू हो गया. और अभी तो मैं फ़िलहाल नहीं टेस्ट कराया हूँ, लेकिन अब मैं पूरे दिन, सारे दिन मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ. इतनी बॉडी फिट हो गई है और बहुत ही ज़्यादा आनंदित में हूँ मैं. तो ये बड़ी बात है, वेद प्रकाश जी का भी सारे भेद खुल गया. मंडूकासन ऐसे और ऐसे, मंडूकासन, शशकासन, मंडूकासन और शशकासन करो. अगली माता को देना. स्वामी जी प्रणाम. मेरा B12 140 है और D3 है मेरा 15. तो मैंने इंजेक्शन लिए थे, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे. इंजेक्शन भी, दवाई भी काम नहीं कर रही, बताओ. हाँ? अगली को देना इसको. तेरा कितना है? ओम पंडित स्वामी जी, मेरा विटामिन डी तो 5 ही निकला. 5? हाँ ये जी. राम. और विटामिन B12 जो है वो 145. तो आई तो मैं बेटे के लिए हूँ, लेकिन यहाँ पे आके मेरा भी ट्रीटमेंट हो रहा है, और बहुत अच्छे से जो आपके काढ़े हैं और जो आपकी खाना पीने का जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है. बेशक हम वो हर रोज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका कितना है? इसका शौर्य. ओम स्वामी जी, मेरा विटामिन D9 है. 9. अब वो ओछू से है. 20-30 होना चाहिए कम से कम बताया. और B12 211 है, 211. 211. हाँ बताओ. और शुगर कितना आ गया आप? पहले तो शुगर 507 निकला था. अभी जब मैं योगोग्राम आकर चेक कर रहा हूँ तो अभी 79-80 के आसपास आ रहा है. और इंसुलिन बिल्कुल ये जोरदार काम कर रहे हैं. अब ये सबसे ज्यादा प्रसन्न दिखता है. 10-10 मिनट या मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्र अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन से लेके पवन मुक्तासन से लेके हलासन तक 10-10 मिनट करना. क्या कह रही है? स्वामी जी, हम महाराष्ट्र से आए हैं
पुणे से, और वहाँ पे सभी डॉक्टर्स को दिखाया, सबने यही बोला कि 4 टाइम इंसुलिन देना ही पड़ेगा। एक बार भी मिस किया तो आपको हाथों में अपने बच्चे को लेके आना पड़ेगा हॉस्पिटल में। हमको ऐसे हाथों में लाना पड़ेगा? हाँ, एक बार हमें निकलते ही बोला। अब उस बाबा के पास, उसी डॉक्टर के पास जाना और ये सारी रिपोर्ट लेके जाना। हमको इतना डरा दिए थे सभी डॉक्टर्स ने, उन्होंने कहा एक टाइम भी मिस किया और यहाँ से हॉस्पिटल से निकलोगे 10 लोग बोलेंगे। डरा देते हैं रे, राम 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 राम। ऐसे ही बोले हमको कि हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे तो हमको आपको 10 लोग दिखेंगे कि हाँ जो कहेंगे डायबिटीज ठीक हो जाता है। जैसे वो सारी दुनिया की जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है पागलों ने। और हमें बहुत डरा दिए थे, सच बता रहे हैं, इतनी दूर से। इसीलिए 16 HbA1c जो एवरेज शुगर होता है 16, जो कि 5-6 होना चाहिए। और हर महीने 2-2 किलो कम हो रहा है, हर महीने 2-2 किलो इसका कम हो गया वजन। हाँ, अब वजन बढ़ जाएगा। ए इधर आ, ले तेरे को एक गिफ्ट देता हूँ, वेट गेन। हाँ चलो, जोरदार ताली बजा दो बस। शुक्रिया। खूब माल मिल रहा है तेरे को। आपका आशीर्वाद है स्वामी जी। माल मिल गया, माला मिल गई। आपका ही कोटि कोटि। लेकिन ये बच्चा बहुत खुश है, पॉजिटिव है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, हाँ? ये करना ऐसे। और विटामिन डी, B12 से लेकर के एक खास बात बताता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन भी करेंगे। ये जो है, ये हमने च्यवनप्राश तो आपने बहुत सुना, वो भी बनाते हैं। देखो हमारे च्यवनप्राश रखा है, खाया भी है ना च्यवनप्राश। लेकिन एक है ये कोलेजन प्राश, इसी में ही डब्बे के अंदर ही चम्मच भी देते हैं। 2 चम्मच खाना है ना। और किसी को, जिसको अपनी बड़ा जोर से बंद कर रखा है, खोल के देना रे। ये दरअसल चिकने चिकने हो रखे हैं ना मेरे हाथ। 2 चम्मच कोलेजन प्राश खा लो, या 2 चम्मच तिल, और 2 चम्मच तिल ले लो, 1 गिलास गाजर का जूस पी लो। और ये खाने में इतना टेस्टी है। किसको खाना है? सारे तैयार है। और किसी किसी को तो, जिसकी थोड़ी सी चमड़ी, इधर आए, थोड़ी सी गोरी चमड़ी वाली छोरी, जिसकी चमड़ी थोड़ी सी गोरी हो ना, तो वो तो ऐसी सोचती है मैं 100 साल तक ऐसे ही रहूं। अब एकदम खा के बताना तेरे को टेस्ट कैसा लगा। बैठ। ये इसमें अलग अलग तरह की बेरीज है, इसके अंदर तिल भी है, इसके अंदर सारी चीजें हैं जो चाहिए स्किन के लिए। ये कोलेजन का नेचुरल सोर्स है 100%। बहुत अच्छा है स्वामी जी, से स्ट्रॉबेरी जैसा लगता है। और कई तरह के टेस्ट आ रहे हैं ना। बहुत देर में सोच के बताया, नहीं मैंने एनालिसिस कर रही थी। ले औरों को भी 1-1 चम्मच खिला दे, उधर ले जा। हाँ? तो ये सच में बहुत जबरदस्त है। ये कोलेजन प्राश बनाया है। क्या नाम रखा है इसका? ये कोलेजन प्राश भी, नामकरण भी मुझे आता है ना, क्योंकि शब्द ना, एक चम्मच खा लो। हाँ, इसमें क्या है। तो हमने ये कोलेजन प्राश पहली बार ये भी एक तरीका है। ये ले जाए और ले जाओ, औरों को खिलाना है तो। बहुत टेस्टी है। हाँ, बहुत ज्यादा स्वाद है। बहुत ज्यादा स्वाद है। मुफ्त का है इसलिए तो नहीं बता रहा। तो कहाँ माइक से प्रतिक्रिया लेते हैं तो पता तो लगेगा। ये पहले आजकल वो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो उसकी क्या करते हैं, नहीं सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग जो है कर रहे हैं आज हम इसकी। वैसे तो बाजार में पहुंच चुका है ये अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन। तो बदी जातनी डेफिशिएंसी दूर था। हाँ? ये प्रोडक्ट अगर एमवे कंपनी बेचेगी, न्यूट्रीलाइट डेली बोलकर उनका प्रोडक्ट है, तो ये 3,000 से 3,500 के बीच में ये जरूर लाएंगे। 3,000 तक बेचते हैं, ठीक कह रहा है।
इनके डेली प्रोडक्ट जो होते हैं नेचुरल डेली उनका एक होता है, मैंने कुछ दिन खाया था, वो प्रोडक्ट उनका 2900 रुपया दाम है। बताओ 2900 और स्वामी जी का कल यहाँ से मैंने लिया है, शायद 200 के आसपास का कुछ कीमत है। कोई कंपटीशन ही नहीं है। और स्वदेश का अपना पैसा मल्टीविटामिन है उसमें, मल्टीविटामिन है। हमने उसका डेली एक्टिव नाम रखा हुआ। मतलब हम किसी जन्म में सर आपका उपकार ये नहीं निभा पाएंगे स्वामी। तो ये कोलेजन प्रास पीछे वाली बहन जी को भी देना। कैसा भाजी टेस्ट और फील? बहुत अच्छा टेस्ट है, हाँ? बहुत मिक्स फ्लेवर आ रहा है। मिक्स फ्लेवर आ रहा है इसमें। इसमें 8-9 प्रकार की तो वेरीज हैं। अच्छा, इसके अंदर तिल भी है, तिल का भी टेस्ट आ रहा है ना हाँ थोड़ा। जी हाँ जी, तिल का भी आ और रहा सारे है, वेरीज का भी टेस्ट तिल आ रहा का भी है। टेस्ट और आ रहा हनी है इसके अंदर, शुगर नहीं है, चीनी नहीं है इसके अंदर। अच्छा, हाँ। और मीठा कितना है? बहुत भरपूर। हाँ वो उभर करके आ रहा है। हाँ। बाकी थोड़े थोड़े सब आ रहे हैं। चलो करो, अभी तो तुम खाने पीने में मस्त हो गए सारे। हाँ माँ, हाँ जी प्रणाम। तेरे को क्या क्या फायदा हुआ? वक्रासन करो। तो बच्चों को फायदा हो गया, मेरे लिए सबसे बड़ा ये फायदा। तेरे बच्चे हैं क्या? ओ इसीलिए अम्मा एकदम खुशी से फूले नहीं समा रही है। सही पूछो तो मैं तो ठीक, मेरी शुगर तो ठीक हो ही गई, बीपी भी ठीक हो गया, और मेरे को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए बस। इसका पोता अच्छा हो गया, तो नहीं तो रोज रोती थी ये चुपचाप। हाँ बस मेरे को क्योंकि इतना डॉक्टर डरा देते हैं, तो बच्चों के सामने तो हौसला रखते हैं कि कहीं बच्चे डिप्रेशन में ना चले जाएं। पीछे से तो माता पिता दादा दादी सब उनकी आंखों में आंसू होते हैं जब ऐसे हो जाता है। बिल्कुल अंदर ही अंदर पी जाते हैं आंसू। बस आपका आशीर्वाद चाहिए बस। 30 साल से ले रही थी दवाई, बीपी की दवा। हाँ, 88 में हस्बैंड के एक्सपायर हुए थे, 89 में शुरू हो गई, 32 साल हो गए। तो इधर 24 को आए हैं, तब से मैंने बीपी की टैबलेट ली। बीपी भी ठीक, शुगर भी ठीक, और मन भी ठीक हो। मन तो ठीक हो ही गया, ये आपके दर्शन क्योंकि हो शौर्य गए, ठीक हो गया, पोता बच्चे ठीक हो गया। हाँ बच्चे खुश। हाँ? पीछे वाले देना। गोमुखासन करो। प्रणाम स्वामी जी। गोमुखासन वक्रासन जी। मेरा विटामिन D3 8 जितना था, अरे राम राम। और अभी यहाँ पे आए हुए 2 दिन हुए हैं, और मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस भी है साथ में। तो वो ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से एंकिलोजिंग भी होता है, अर्थराइटिस भी होता है, कैंसर भी होता है। यहाँ पे अभी मुझे आए 2 दिन हुए हैं, सूर्य नमस्कार कर पाता हूँ। क्या बात है, 2 ही दिन के अंदर एंकिलोजिंग वाला, ये तो जोरदार काम। क्या नाम बेटा? हर्षित दवे, गुजरात से हूँ, गांधीनगर से। अरे गुजराती में बोलो ना, तो પછી આ તો ગુજરાતીનો પ્રોગ્રામ ગુજરાતીનું છે। ખૂબ જ સરસ છે, અહીંયા ટ્રીટમેન્ટ ઘણી જ સારી મળે છે, અને જે હું છેલ્લા 3-4 વર્ષથી આ જે દર્દથી પીડાતો હતો એનાથી મને ઘણી જ રાહત રહી છે। અમે છેલ્લા 10 વર્ષથી સ્વામીજીને ફોલો કરીએ છીએ, એટલે એટલા માટે આનું ખબર જ હતી યોગગ્રામનું, અને હવે અહીંયા આવીને પ્રત્યક્ષ અનુભવ કર્યો અને ઘણો જ સારો રહ્યો છે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। એ બેજ આ હર્ષિતનો તો એ તો હિસ્ટ્રી બનાવી દીધી। બેજ દિવસમાં આ છોકરો આમ લાગે જ ને એને કોઈ બીમારી છે। હા, સૂર્ય નમસ્કાર કરવા લાગ્યો, કેટલો સરસ છે। आपको स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। मैं अजमेर राजस्थान से हूँ, सुनील शर्मा। जी जी आवाज़ आ रही है शर्मा सर मैं स्वामी जी, मैं मेनली तो मेरी बेटी के एक SLE करके डिजीज है, लूपस की, उसके इलाज के लिए आया हूँ। और मैं भी साथ में मैं एक तो हाइपरटेंशन है मेरे को, और स्पॉन्डिलाइटिस है, और विटामिन B12 और D6 की D3 की कमी है, तो मेनली इसीलिए मैं आया हूँ। आज जो उपाय बताए इसको पूरा कर लेना जी। मैं स्वामी जी आपसे ये और पूछना चाह रहा था कि बेटी के लिए कल मैं आपसे मिला था, आपने मुझे बताया था कि एक तो कपालभाति अनुलोम विलोम 1 घंटा करवाना है। आसन कौन से हैं SLE डिजीज के लिए स्पेशली? आसन यही है, मंडूक आसन जो अभी आसन करा रहे ना जी, ये अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी डेफिशिएंसीज होती है। पाचन तंत्र के गड़बड़ होने से ही ल्यूपस की बीमारी है। अच्छा। और कोई दूसरा कारण नहीं जी, है ना? तो कपालभाति से लेकर के सर्वांग आसन तक, हलासन तक। सर इसमें स्वामी जी कुछ मेन आसन बताइए, क्योंकि ताकि वो बच्चा क्या है, ताकि कम से कम 5-7 रोज का आसन कर ही सके। पवन मुक्तासन जी, लेट करके बैठ करके मंडूकासन, वक्रासन, इतना मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन बैठ करके जी, और लेट करके पवन मुक्तासन, बस इतना कर ले, ठीक, इतने से ही ठीक हो जाएगी। चलो करो, धन्यवाद स्वामी जी। अगले को दो भाई को।
ओम स्वामी जी। जी मैं कोलकाता से आया हूँ, अजय गुप्ता। मुझे भी विटामिन डी और B12 की कमी है। मैं यहाँ 15 दिन से योग ग्राम में हूँ और मुझे पहले से बहुत सुधार महसूस हो रही है। और B12 की कमी के साथ साथ और बीपी शुगर और तो कुछ नहीं, अर्थराइटिस जोड़ों में दर्द? हाँ, अर्थराइटिस है। अर्थराइटिस ये की भी। B12 विटामिन डी और ये प्रोटीन, ये अलग अलग कमजोरी होने से अलग अलग प्रकार के दर्द भी होने लगते हैं। जी जी। ये भी अब दूर हो रहे हैं ना? हाँ, पहले से इसका मतलब अंदर से फुलफिल हो रहा है, महसूस हो रहा है कि पहले से अच्छा लग रहा है। चलो अगलों को देना। नमस्कार स्वामी। बहुत आशीर्वाद। तो ओम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम आपको। मैं जयपुर से आई हूँ, मीना अग्रवाल है मेरा नाम। मेरे विटामिन B12 एक तो मेरा कम था, 135 आया था। वैसे तो मेरे थायराइड, बीपी, शुगर तीनों ही है, लेकिन यहाँ आने के बाद में 2 दिन बाद मेरी तीनों दवाइयाँ बंद कर दी हैं यहाँ पे। बीपी, शुगर, थायराइड? हाँ, और मेरे बीपी भी नॉर्मल 80-120 आ रहा है, और शुगर भी फास्टिंग तो मेरे 100 के अंदर ही आता है, और बीपी भी है ना 135, 120 ऐसे, 100 कभी 15 ऐसे 10 ऐसे ही चल रहा है। और मेरे वर्टिका की प्रॉब्लम थी, चक्कर खूब आ रहे थे मेरे को, तो वो चक्कर भी मेरे यहाँ के ख़त्म हो गए। और मेरे हर्निया का जो ऑपरेशन हुआ था तो डॉक्टर ने मुझे नीचे बैठने के लिए मना कर रखा था, मैं बैठ नहीं पा रही थी, लेकिन अब मैं 2-4 दिन से मैं यहाँ नीचे बैठ के भी है ना कर पा रही हूँ। मैं धीरे धीरे करना कपालभाति, और आगे झुकने वाले करना, पीछे मत करना। एक स्वामी जी आपसे ये पूछना था कि मेरे वर्टिका की जो प्रॉब्लम है, तो आप जो मंडूका करवाते हैं आगे झुकने का, वो मैं कर सकती हूँ? हाँ, वर्टिको आने पर खड़े होकर के चक्रासन आदि नहीं करने होते जिससे गिर सको, बाकी सब करो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और अगली को देना बहन को। चलो सर्वांगासन, हलासन करो जो स्वामी कर जी सकते। प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम अंजू अग्रवाल है, मैं जयपुर से आई हूँ। दोनों सहेली हो क्या? सास बहू हैं। ये जोरदार काम है जी। मुझे विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी है। शुगर भी था, यहाँ पर आने के बाद काफ़ी कम है। कमर में काफ़ी दर्द था, पिछले 6-7 साल से मैं परेशान हो रही थी, पर यहाँ पर आने के बाद उसमें भी बहुत सुधार है। पाइल्स की भी मेरे को प्रॉब्लम है, जिसको मैंने 3-4 साल से लगातार इलाज ले रही हूँ, बहुत दवाएं खाई हैं, कोई सुधार नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मिट्टी पट्टी से और ये अनुलोम विलोम वगैरह करने से मुझे उसमें भी काफ़ी सुधार महसूस हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, मुझे धूप में जाते ही तुरंत सिर दर्द हो जाता था, यहाँ मैं आधे 1 घंटे से बैठी हूँ, वो सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे लग रही है कि मेरा अभी तक सिर दर्द नहीं हो रहा है। ये जोरदार काम है। अब विटामिन डी मिले धूप से, और धूप में जाए तो सिर में दर्द हो जाए। अब यहाँ सब शरीर का शुद्धिकरण हो गया, अब धूप से सिर में दर्द भी नहीं हो रहा है, ये तो बड़ी उपलब्धि हो गई जी। वो मैं इतनी देर से यही सोच रही हूँ कि मेरे सिर में दर्द नहीं हो रहा है आज। ये पता लगा आज बैठ के। जी बिल्कुल बिल्कुल। अनुलोम विलोम ज्यादा करना है ना जी। हाँ, चलो बहुत आशीर्वाद। ये कपालभाति, अनुलोम विलोम आ મહોષધ છે, મહોષધ। તો આવી રીતે તમે દરરોજ યોગ કરશો અને જે નેચરલ વિટામિન્સ તો તમને બતાવ્યા જ, આ તૈયાર પણ અમે ન્યુટ્રેલાના આપ્યા છે બધાને, અને આ બધું કરીને અને ઘરમાં જે નોર્મલ વસ્તુઓ છે એનો ઉપયોગ કરીને તમે મોટા મોટા રોગોને મટાડી શકો છો। એટલે દરરોજ એક નિયમ લઈ લો, ખુરશી પર બેસીને સુખાસન પદ્માસનમાં બેસી રહે, કપાલભાતિ અને અનુલોમ વિલોમ, એ વધારેમાં વધારે કરવાનું। સાત્વિક આહાર, સાત્વિક વિચાર, સાત્વિક વાણી વ્યવહાર સ્વભાવ, સાત્વિક આચરણ જીવન। યોગથી યુક્તાહાર વિહારસ્ય, યુક્ત ચેષ્ટસ્ય કર્મસુ, યુક્ત સ્વપ્નાવબોધસ્ય યોગો ભવતિ દુઃખહાહા। આ છે યોગની મહિમા। એટલે કોઈ પણ જાતની ડેફિશિયન્સી હોય, તમે યોગથી અને પ્રકૃતિના સંયોગથી, એટલે આપણી જે મૂળ પ્રકૃતિ છે, મૂળ સંસ્કૃતિ છે, આપણી જડો છે, એનાથી જોડો અને રોગોને જડમૂળથી ઉખાડો।